point, of course, about television celebrities and Tamil Nadu politics. Go ahead, Rajalakshmi. No, as I was saying, that the link between Dravidian parties and and films and their political careers, interspanning in both. I think that perhaps we may see a certain halt to that, because the two very famous film personalities who want to enter politics today, they do not have in fact much to do with the Dravidian movement as such, and neither have they sort of come up from Dravidian politics too. So I'm referring to Mr. Rajnikant and Mr. Kamal Haasan. Okay, so as far as we know that that the film, I think part of it, perhaps might take a break at this point. But the fact remains that his, I think, larger than life personality, because it goes beyond films. Of course, he did use his scripts to push certain social, in fact, messages of social transformation, which was essentially anti-upper caste. One should not forget that. And there was a reference to Mandal. I'd just like to add here that while, of course, Mandal may have been a huge thing for North India, I mean, in the South, there were hardly any protests. They had already given those reservations to the backward castes, and that the backward caste movement had already reached a certain, pinnacle of achievement in that sense, and that the benefits, were being felt by the populations of those states where backward class and caste reservations had been given. Okay. So I'm sorry to cut you short once again, because Mallikarjuna Kharge is speaking to the media now. Let's listen to what he has to say. Shraddhanjali to him. He is a rationalist leader, and he fought for the Dravidian cause, and also for democracy, and also for his own state. He is a great leader we have lost, and really, on behalf of my party and myself, we condone his death. And also, I expect that all his followers will follow his line, and particularly we were very close. He is ally of our party also, and not only that, during some worst period of in Tamil Nadu and Karnataka, particularly Kaveri issue and that Veerappan case, I used to go him often and meet him. He is a very courageous leader, and he supported that cause, and I really, we have lost a great leader of this country. जिस तरीके से हम चर्चा कर रहे हैं कि तमिलनाडु की राजनीति, एम करुणानिधि का उदय और 60 के दशक के बाद उनका उभार किस तरीके से हुआ, सामाजिक आंदोलन और रिजर्वेशन को लेकर या फिर सोशल स्कीम्स को लेकर उन्होंने एक नई पहचान बनाने की कोशिश की अपने मुख्यमंत्री काल के दौरान, और 13 बार एमएलए, जैसे कि मैंने कहा, एक नया रिकॉर्ड कि जितनी बार उन्होंने चुनाव लड़ा वो हर बार जीते, और साथ ही साथ 49 साल तक वो पार्टी के प्रेसिडेंट। गणपति सुब्रमण्यम हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और आप बेहतर समझा पाएंगे कि अगर तमिलनाडु की राजनीति, जिसका जिक्र हम लोग कर रहे थे कि फिल्म से अटैचमेंट और फिल्मी जो हस्तियां रही हैं उनका दखल, और उसके बाद राजनीतिक दिशा में सामाजिक सुधारों को आगे ले जाने की कुव्वत, अब उसे आगे कैसे देखते हैं तमिलनाडु की राजनीति में? करुणानिधि के जाने के बाद तमिलनाडु पॉलिटिक्स में एक नया चैप्टर शुरू हो गया। इससे पहले डीएमके और द्रविडियन मूवमेंट का कोई भी चैलेंज कभी भी आया पिछले 50 साल में, तो करुणानिधि सबसे आगे थे उस लड़ाई में। और लोग कहते हैं कि नर्व्स ऑफ स्टील, कभी डरते नहीं है। इमरजेंसी में जेल में डाल दिया, उनका फैमिली वालों को जेल में डाल दिया, कभी नहीं डरे। पूरा पार्टी हार गया, सिर्फ करुणानिधि जीते, 4-5 एमएलए है, फिर भी वो लड़ते रहे। तो पार्टी टूटा, एक बार टूटा, 2 बार टूटा, लोग चले गए, हमेशा जो है वो हिम्मत नहीं हारते थे, पूरा टाइम लड़ते थे, वो उनका एक स्पेशलिटी था। दूसरा, तमिल पोएट्री हो, प्रोस हो, ड्रामा हो, स्क्रीन प्ले हो, करुणानिधि का बराबर करने वाला कोई नहीं। इतने साल से जितना इन्होंने लिखा है तमिल में, तो और कोई
कंटेम्प्रेरी राइटर इतना वॉल्यूम में लिखा होगा कि पता नहीं, रोज कॉलम लिखते थे, ऐसा स्ट्रेंथ है। Sad demise of Sri Karunanidhi ji. He was known as Kalangar. He was called like that in Tamil Nadu. His followers used to. And really, he was a great leader, no doubt. And for so many years, he worked for downtrodden. He worked hard, not only for his party, but as to whole Tamil Nadu as such. He gave a hard and good leadership. And really, it is a great loss, not only to Tamil Nadu itself, not only to one state, because leaders, you don't get leaders in, as it is, it takes so much time for that, to have one leader, one strong leader. So it is a great loss for a whole country also, that we have lost a strong leader, we have lost a strong worker for downtrodden people, for poor people. We have lost such a worker, and we have lost a eminent person in the country. So that is a loss to the country, and I really I pay my homage to him, and I console all people in Tamil Nadu and in country who were his followers. Thank you. Thank you. लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन बता रही थी कि किस तरीके की क्षति न सिर्फ देश के लिए बल्कि राजनीतिक समाज और उन लोगों के लिए जिनकी लड़ाई के लिए करुणानिधि हमेशा आगे रहे हैं। गणपति, आप जो बता रहे थे, मैं थोड़ा सा उसको और आगे समझना चाहूँगा कि पहले जयललिता, उनका निधन, और उसके बाद करुणानिधि, और ये दो एक ऐसी ध्रुवी, मैं कहूँ, उस राजनीति में जहाँ पर राष्ट्रीय पार्टियों ने पूरी ताकत लगाई, लेकिन एक बार जब ये बाहर निकल गई उनको कभी वापस मौका नहीं दिया। आगे का जो क्या कहूँ कि अब स्कोप या फिर जो राजनीतिक ज़मीन है वो एक बार फिर से खुलती है सबके लिए। बिल्कुल, नेशनल पार्टीज 50 साल से दरवाज़ा खटखटा रहे हैं लेकिन कुछ नहीं कर पाए। जो करुणानिधि हो या एमजीआर हो या जयललिता हो, सभी लोग द्रविडियन स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स उसी से आ रहे हैं। जैसे राजलक्ष्मी जी ने बताया, तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा पूरा इंडिया में जहाँ कहीं पे भी नहीं है 69% रिजर्वेशन है, तो वो वहाँ पे अभी तक एकदम लागू है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चल रहा है। तो इस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन लेके आए, तो इसी कारण में इनके आपस में लड़ाई होगी, लेकिन जब दूसरा कोई खतरा आता है ये सब इकट्ठा होके लड़ते हैं। तो ये भी इनका एक खासियत है। और करुणानिधि जी का ये है कि ही वॉज सो स्ट्रॉन्ग इन हिज रीजनल पॉलिटिक्स, ही हैड अ मेजर रोल इन नेशनल पॉलिटिक्स ऑल्सो। जैसे गौड़ा जी का प्रधानमंत्री बनाना, फिर उसके बाद आई.के. गुजराल वाला सरकार, इन सब में बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। भारतीय जनता पार्टी की भी साथ इनका डीएमके का कोalition अलायंस, सेंट्रल गवर्नमेंट में मिनिस्टर्स थे। जैसे कांग्रेस के साथ भी अलायंस है, चल रहा है। तो हर चीज़ में एडजस्ट करके जाने वाला एक हस्ती है करुणानिधि। ऐसा आज आपके साथ कोई मतभेद होगा, कल आपके साथ फिर से वो वापस अलायंस भी कर सकते हैं। तो दोनों का कारण वो एकदम कन्विंसिंगली बताएंगे आपको। इस तरह का सीजन्ड पॉलिटिशियन है। सो देयरफॉर आज का दिन में डीएमके का सबसे ज़्यादा क्राइसिस, इतने साल से पार्टी का लीडरशिप उनका अनचैलेंज था, पार्टी टूटा, लोग छोड़ के कोई फ़र्क नहीं, लेकिन प्रेसिडेंट करुणानिधि जी थे, अब वो चले गए। तो उन पार्टी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि वो अपना पोजीशन कैसे रखेगा। विजय गोयल को सुन लेते हैं। इस वक्त केंद्रीय मंत्री का विशेष स्थान रहा, वे वहाँ के मुख्यमंत्री भी रहे। सामाजिक क्षेत्र के अंदर, राजनीतिक क्षेत्र के अंदर उनका बहुत योगदान रहा, और एक अच्छी आयु उन्होंने व्यतीत की। मैं उनको अपनी तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। केंद्रीय मंत्री विजय गोयल श्रद्धांजलि देते हुए एम करुणानिधि को। और गणपति जो बता रहे थे उसको थोड़ा सा मैं शाम आपको भी लाना चाहूँगा इस चर्चा में, कि जिस तरीके से जो दलित या पिछड़ों की राजनीति, उनको सामाजिक हक दिलाने की जो मुहिम तमिलनाडु में हमने देखी रिजर्वेशन को लेकर, और उसके हिमायती वो थे, और उसको लेकर 80 के दशक में जब केंद्र में वीपी सिंह की सरकार बनी, उन्होंने खुलकर उसको लेकर खेमबंदी की और सिर्फ सपोर्ट भी किया। अब उसके बाद तमिलनाडु में जब जयललिता भी नहीं है और करुणानिधि भी नहीं, किस तरीके से देखते हैं इस खाली जमीन को और आगे के भविष्य को?
बहुत ही मुश्किल सवाल है कविंद्र। हालांकि करुणानिधि जब वो बीमार रहने लगे थे उससे पहले ही उन्होंने एम के स्टालिन जो उनके बेटे हैं उनको अपना उत्तराधिकारी के तौर पर पार्टी की कमान सौंपी थी और उनको स्थापित करने की भी कोशिश की थी। और काफ़ी हद तक ये माना जाता है कि स्टालिन ने डीएमके की कमान संभाल ली है। लेकिन जैसा कि गणपति कह रहे थे कि जो करुणानिधि का जो कद था, जब उस कद का नेता कोई बात कहता है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो लेफ्ट पार्टीज हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे दूसरी क्षेत्रीय पार्टी हो, उसका एक मतलब होता है, उसको गंभीरता के साथ लिया जाता है। और कई बार जब आपकी पार्टी कमज़ोर होती है तो भी उस नेता का जो कंट्रीब्यूशन होता है और उस नेता का जो करिश्मा होता है वो काम करता है। लेकिन क्या वो करिश्मा स्टालिन पैदा कर पाएंगे अपने अंदर? कम से कम अभी वो स्थिति नज़र नहीं आती है। तो निश्चित तौर पर जहाँ तक डीएमके का सवाल है, उनके सामने चुनौतीपूर्ण इस वक्त समय है। और न सिर्फ डीएमके के सामने बल्कि तमिलनाडु, जिस तरह से, जब मैं 1989 मुझे याद आता है जब हम लोग कॉलेज में आए थे और उस वक्त में जब कोएलिशन पॉलिटिक्स का ज़माना शुरू हुआ था, उस वक्त में जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि जो प्रोमिनेंट चेहरे आपको नज़र आते थे, चाहे वो रामकृष्ण हेगड़े हों, चाहे वो एनटी रामाराव हो, चाहे वो करुणानिधि हो, मूपनार हो, पहली बार दक्षिण के गैर कांग्रेसी चेहरे सामने आते थे। और फेडरलिज्म जैसे शब्द, जैसे आपने कहा रिजर्वेशन को लेकर या दलित इश्यूज को लेकर, द्रविड़ आंदोलन से निकलकर ये नेता सामने आया था। और उस नेता की एक जो कल्ट की राजनीति तमिलनाडु में लगातार रही, उसके जैसे कि मैंने शुरू में भी कहा कि वो आखिरी स्तंभ थे। तो निश्चित तौर पर एक वैक्यूम इस वक्त में नजर जरूर आता है। और जिस तरह से जब जो टीके राजलक्ष्मी से फ्रैंक ने जो सवाल पूछा था कि कमल हासन हो चाहे रजनीकांत हो, वो भी क्या वो करुणानिधि की जगह ले सकते हैं? मुझे जो जितना मेरा पत्रकारिता का अनुभव है, मुझे थोड़ा सा मुश्किल नजर आता है, क्योंकि 2004 का मुझे वाकया नजर आता है जब रजनीकांत ने पहली बार कुछ राजनीतिक संकेत दिए थे और उस वक्त में करुणानिधि वहां पर लेफ्ट पार्टीज के साथ बहुत ही छाने वाले ऐसे लोगों के बारे में, लोगों के मन में धारणा थी। और पिछले 5 दशकों के तमिलनाडु के राजनीति में करुणानिधि अपने अलग सा एक छाप छोड़ करके दिया है। उनका निधन से हम सभी बहुत दुखी है और शोक भरे मन से मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके परिवार वालों को और एक बहुत बड़ा उनका जो फॉलोअर्स है, अनुयायी है, उन सबको ये दुख भरने की ताकत भगवान दे, ये प्रार्थना करता हूँ। कलाइंगर करुणानिधि जी had a indelible impression on the politics of Tamil Nadu, South India and India. केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार जो बता रहे थे करुणानिधि के बारे में, उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे थे। श्रीनिवासन सर, जो सवाल हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं कि तमिलनाडु की जो राजनीति रही है और जो वहाँ की जनता, उनके मसाइल जो मुद्दे रहे हैं और उनको लेकर, चाहे वो जयललिता रही हो या फिर करुणानिधि, उनका एक अलग तरीका था, चाहे वो रिजर्वेशन को लेकर हो या फिर दूसरी सोशल स्कीम्स को लेकर हो। क्या वो मादा, क्या वो अब वेल दिखेगी या दिखती नजर आ रही कुछ उभरते हुए चेहरों में, जिनको हम कह सकते हैं कि वो उस लड़ाई को या उस विरासत को आगे ले जाने में सक्षम हैं? ये बहुत मुश्किल सवाल है। आपने ये काफी कठिन सवाल उठाया है। अभी तक तो ऐसा दिख नहीं रहा है, क्योंकि ये दोनों ही नेता, और न केवल ये दो, इसके पहले भी यदि आप तमिलनाडु का इतिहास देखें, राजाजी से लेकर कामराज, अन्नादुरई, एमजी रामचंद्रन, उसके बाद जयललिता, उसके बाद अब करुणानिधि, ये सभी अपने 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 तरीके के बड़े गद्दावर नेता कहा जा सकते हैं, जिन्होंने सबने अपनी अपनी एक अलग पहचान छोड़ी है। यदि आप एमजीआर को लें
उन्होंने अपना जो कार्यकाल शुरू किया वो सिनेमा से शुरू किया। सिनेमा की मदद से उन्होंने लोगों को एक सोशल मैसेज पहुंचाया, मगर बाद के कार्यकाल को देखें तो एक अपने आप में एक बहुत बड़े पॉलिटिकल पावर में उभर के आया। ऐसे ही जयललिता के साथ भी हुआ। करुणानिधि मूवमेंट से आए थे, उन्होंने उस मूवमेंट को काफी आगे बढ़ाया, द्रविड़ मूवमेंट को, और अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया। और ये सभी बड़े नेता मैं ये कह सकता हूं कि एक चैप्टर तमिलनाडु में इनके मृत्यु के साथ एक चैप्टर जो बड़े नेताओं का एक जो सिलसिलावार रहा है, शायद वो यहाँ थोड़े दिनों के लिए शायद थम जाए। अब हमें देखना है कि क्या उनके बराबर का कोई नेता या ऐसा कोई नेता निकल के आता है। ये इनका जगह, करुणानिधि जी का जगह भरना इसलिए मुश्किल है। ये देखिए, जहां पर मैंने अपने कार्यकाल में देखा है पत्रकार के रूप में, मास लीडर बहुत सारे हैं भारत में। इस देश में बहुत सारे मास लीडर्स हैं जिनको जनमानस से उनका बड़ा पक्का उनका नाता रहा है। कुछ नेता जैसे नरसिम्हा राव हैं, उनको थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल नेता माना जाता है, मगर आपने बहुत कम नेता ऐसे सुने होंगे जो अपने आप में एक इंटेलेक्ट भी हैं और एक मास लीडर भी हैं। इनको आप इंटेलेक्ट इसलिए कह सकते हैं कि तमिल के अपने आप में एक ये तमिल स्कॉलर भी थे। इन्होंने चीजों को समझा, उसके बारे में लिखा, और बहुत सारे जो माइन्यूट चीजें हैं उसको ये सामने लाए। तो इनके जगह को भरना अब तमिलनाडु के लिए थोड़ा सा मुश्किल तो होगा। और जो नए नेता हैं, जो नए अभी आए हैं, बहुत मुश्किल है। देखिए, ऑलरेडी एआईडीएम के जयललिता के जाने के बाद काफी मुश्किल घड़ी से गुजर रहा है। तमिलनाडु में एक बहुत बड़ा अब एक वैक्यूम है, पॉलिटिकल वैक्यूम है। वहां पर एक लीडरशिप की बहुत भारी कमी है। स्टालिन कैडर से उभर के आए हैं, उनका जो ट्रेनिंग है, उनको आप ये नहीं कह सकते कि उनको ऊपर से थोप दिया गया है, ऐसा नहीं है। वो भी उन्होंने भी काफी पॉलिटिकल काम किया है उन्होंने। वो भी जेल गए हैं इमरजेंसी के दौरान शायद। मगर यदि आप उनकी तुलना करें करुणानिधि से तो बहुत मुश्किल होगा। इंडीड, करुणानिधि या उसके पहले के जितने बड़े नेता हैं, उनका अब समान कोई नेता ढूंढना अभी फिलहाल तो बहुत मुश्किल है। You know, that having been said, Srinivasan, with the demise of Karunanidhi, can we say that the Dravidian movement can now be only limited to the history books? Well, I won't say that, because the very fact that Dravidian movement has sustained for so many years, that there is something you have to say about it. But I would agree with you that yes, a very strong votary of Dravidian movement is no more. And the question is whether can Stalin, especially in an environment where nationalist forces are gaining ground, where right-wing politics is gaining, not just in India, all over the world, can Dravidian philosophy manage to find its feet? Will it be swept away, or whether it can retain its foothold and face the onslaught from other ideologies? It's a question to be answered. But as of now, I won't say that it will be written off. Yes, obviously the downfall, there is a deterioration which has already started over the years, and whether that slide could be stopped. And one of the senior most leaders of the country, who has been 5 times Chief Minister of the state of Tamil Nadu, and more than a dozen times, 13 or 14 times an MLA, a minister, legislature, leader of opposition, who has been 10 times the party president of DMK, is not being respected only in Tamil Nadu, but being respected across the country. In his loss, as I said, the country has lost one of the tallest leaders, and it's very difficult to fill up the vacuum which has been created after his death. I
pay my homage to him. I have known him for more than 4 decades. When I was youth Congress leader, since then I know him and his entire family. It's a personal loss to me. As a matter of fact, my entire family knows him. I cannot think of going Tamil Nadu and not seeing Karunanidhi ji again. I pray God that may his soul rest in peace and give strength to his sons, daughters, his wives to bear this unbearable loss. So tomorrow when you are visiting Chennai along with Mr. Rahul ji? Well, we are not definitely we'll be visiting, but not decided as yet. Of course we will be visiting, Congress party will be visiting, I'll be also visiting, other leaders also visiting, and hopefully leadership will visit, but the timings and all that will be worked out. So is there any possibility of Madam Sonia ji? No, I can't say because she is not well for the last 4 days, cough and all that, fever and all that. I don't know in this cough and all that she'll be able to go, but for the last 4-5 days she was not well. So the family of DMK President Karunanidhi is seeking a space for Marina Beach, but the Tamil Nadu government has denied space to Mr. Karunanidhi and saying that they are ready to allocate a 2-acre land in Rani. Well, I would expect that the government of Tamil Nadu should not play politics. They should give Karunanidhi ji the respect as a national leader, as a legend, and the sacrifices which he made for the people of Tamil Nadu. He is one of the tallest leaders, as I said, in the country, and the tallest leader of Tamil Nadu. So I think on such occasion, the government and other political parties should be above politics, and Kalinja should be given his due place even after his death. As a matter of fact, he deserves a rightful place even after his death. Thank you very much. Thank you, sir. Deserves a rightful place even after his death is what Ghulam Nabi Azad, of course, leader of the Congress, is suggesting. We'll talk about that, but before that, I'm going to go back to a point that everybody else was making as well. Rajat Lakshmi, your thoughts on who the torchbearer really is going to be of the Dravidian movement. We've also seen that Karunanidhi started the anti-Hindi movement as well, and he was a strong opponent of Hindi right through his career. Does this now pave the way for Hindi to get into Tamil Nadu? I doubt that it will be as easy as that because there is this natural suspicion of of Hindi, and there is also this very strong Tamil identity. Okay, it's also around the language. It's built around the language, but I think the entire Dravidian movement as it stands, there's also a lot of introspection that it needs to do. As to where it stands, because Tamil Nadu is also a state where which has reported a fairly large number of atrocities against the scheduled castes, against the Dalits. So and it's not been sort of it's like it's also on the increase. So where a certain element of introspection is required, whether the social transformation that was envisaged by the Dravidian movement, but the self-respect movement that lay at the backdrop of it, whether it has resulted in an overall social emancipation for all castes in the state, because it is a matter of concern, I think, and that the Dravidian movement, and in fact the legatees of the Dravidian movement, if you can call them that, should also, I think, take a look at that a little bit inwards, because there is a strong Dalit, in fact, protest movement, which is also sort of growing in Tamil Nadu. And though, of course, we all know that it was anti-Brahmanical, it was upper caste, the Dravidian movement. Yes, but the beneficiaries of that, social transformation. Do you see the present lot
transforming and taking things forward, or do you believe that someone new comes up from the grassroots and then transforms the entire system? What do you see happening? Well, organizationally, I don't know whether we have that alternative coming from the grassroots. As of now, as Srinivasan also said, that Stalin, yes, he's cut his teeth in the party. I mean, early on, and is grown up from the ranks. So presumably he or anybody else from the family, I think probably would be taking over, I think, the mantle, and that we hope and expect that they do some introspection, overall as to where the Dravidian movement stands, because as of now people do feel, social scientists and other experts from Tamil Nadu do feel that there is a certain element of stagnation, as far as the Dravidian movement as such is concerned. So an alternate. श्रीनिवासन, एक और मुद्दा जो आता है कि गणपति साहब की जिस तरीके से राज्यों की स्वायत्तता या राज्यों के अधिकार को लेकर उन्होंने लंबे समय तक लड़ाई लड़ी और उसको पॉइंट आउट भी करते रहे, चाहे वो स्वतंत्रता दिवस पर 15 अगस्त 26 जनवरी को फ्लैग को फहराने का मसला हो, जो कि पहले राज्यपाल के पास अधिकार होते थे। 74 में इंदिरा गांधी को उन्होंने पत्र लिखा और उसके बाद वो अधिकार हुआ कि एक फंक्शन में राज्यपाल होंगे और एक में मुख्यमंत्री होंगे। इस तरीके के मसलों को उन्होंने तेजी के साथ उठाया और राज्यों की अपनी अहमियत और उसकी ताकत को सेंटर के सामने रखा भी। उस लड़ाई को अब कैसे आप देखते हैं और क्या वो ताकत थी कि जो उन्हें खड़ा करती थी उनके सामने, यानी कि सेंटर के सामने? बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात है ये तमिलनाडु के सिलसिले में। जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे प्रांतियों में ऐसा रीजनलिज्म का स्ट्रेंथ पकड़ा, उससे काफ़ी पहले तमिलनाडु में पकड़ लिया था। और उसका एक मुख्य कारण करुणानिधि थे। उससे पहले अन्नादुरई वॉज ऑल्सो ए टॉल लीडर, कामराज वॉज ऑल्सो ए टॉल लीडर, राजाजी वॉज नेशनली वेल नोन वेरी टॉल लीडर, बट Karunanidhi gave it that identity and said Tamil identity, we should maintain that. He used to say that our own autonomous rule in the state and coalition in the center, that is sharing of power in the center plus our own autonomy. We will not compromise our independence. The fact that he was a great writer also helped immensely, didn't it? Because he could communicate what he couldn't communicate verbally, he would do so with his words. Of course, DMK cadre would every day read what he has written, because he used to write his column was probably the longest running column in all over India, because he used to write every day and they used to read. Every single day there will be an important message and an emotional connect with the cadre. That is how he built up the organization. Even today, if there is a organization, political organization in Tamil Nadu, जिसमें इतना सारा मास कैडर बेस है, वो डीएमके है। अब ये डीएमके में तो काफ़ी फैक्शनलिज्म हो गया, टूट जाने का डर है, तो लेकिन ये डीएमके में कई बार ऐसा प्रॉब्लम होने के बाद भी वो कैडर बेस कायम रखा है। तो ये करुणानिधि का इमोशनल कनेक्ट था। तो पीपल वर क्राइंग ऑन द रोड्स फॉर हिम। आपने देखा है कि हॉस्पिटल के सामने रो रहे हैं, आ जाइए, बुला रहे हैं उनको। मतलब इतने साल से वो नेता हैं, फिर भी उनसे इतना कनेक्ट है, वो जोड़ के रखा है करुणानिधि। ये इम्पॉर्टेंट रीज़न है कि वो पढ़ते थे और ये लिखते थे, और इतना अच्छा विद्वान है। नॉट ओनली द डेली कॉलम, प्रोस, पोएट्री, ड्रामा, स्क्रीन प्ले, हर चीज़ जो लिखते थे वो एकदम अट्रैक्टिव। And he was very witty as well. अपील करने में he was extremely witty. Of course. और कई बार जो है ऐसा मुश्किल सवाल उनके सामने आते थे कि अगर वो सीधा जवाब नहीं देते थे तो वो एक छोटा सा पोएम या 2 लाइन का शब्द बताएंगे वहाँ पे। ऐसा है कि लोग चक्कर में आ जाएंगे, ये क्या बता रहे हैं। तो ऐसा टाइट सिचुएशन से करुणानिधि निकल जाते थे। एक बार उन्होंने एक कॉलेज में उनको बोला कि ये कॉलेज फंक्शन है, आप यहाँ पे राजनीति की बात नहीं करेंगे। लेकिन वो इलेक्शन आने वाला का टाइम था, तो सारा भाषण सब खत्म हो गया। जाते समय जो है, जाने से पहले भोजन का प्रबंध था। करुणानिधि जी ने बोला खाने के बाद लीफ जो पता है उसको फेंक दीजिए और अपना हाथ धो लीजिए। तो उनका मतलब ये था, हाथ कांग्रेस का था, लीफ जो है 2 लीव्स एआईडीएमके का था। तो उन्होंने राजनीति की बात नहीं बोली वहाँ पे, लेकिन इस बात में उनको जैसे लोगों को बता रहा है कि भाई खा के आप घर जाइए, तो उसी बात में अपना पॉलिटिकल मैसेज घुसेड़ दिया। तो उनका राइटिंग में, उनका स्पीच में, उनका पोइट्री में पॉलिटिकल मैसेज वाज स्ट्रांगली देयर।
मतलब राजनीति ऐसा लगता है कि उनका खून में ही था, तो वो निकल के आता था उनका लिखने में। तो दैट वाज द स्ट्रॉन्ग कनेक्ट ही हैड, कल्चर, सोशल जस्टिस, लिटरेचर एंड तमिल आइडेंटिटी, ये सब मिला के करुणानिधि का पॉलिटिक्स को इतना कायम बनाया। वो राजनीति में वो जो करते थे वो सही है गलत है क्या है वो सब अलग चीज़ है, बिल्कुल, पर लेकिन वो कनेक्ट और स्ट्रेंथ इसकी कॉम्बिनेशन से आता था। और इसी पर मैं चाहूँगा अखिलेश आपसे एक जवाब, जिस तरीके से कहा गणपति ने कि वो जो चाहते थे वो करते थे और तमिल आइडेंटिटी को लेकर वो किसी भी हद तक जा सकते थे। और मुझे लगता है कि अगर हम जब श्रीलंका की बात करते हैं, एलटीटी की बात करते हैं, उस वक्त याद होगा कि सेंटर में सरकार, उसके समर्थन, उसके बावजूद उनके जो बयान थे वो न सिर्फ सरकारों को परेशान कर रहे थे बल्कि उनकी राजनीति से अलग, लोग कहते थे कि ये देश से अलग जाकर कहीं बयान है, लेकिन फिर भी वो उस पर अड़े रहे, उसके साथ रहे। देखिए कविंद्र, तीसरा मोर्चा की राजनीति कवर करने का मुझे काफ़ी मौका मिला और मैंने करुणानिधि से एक दो बार बातचीत करने की काफ़ी अवसर मिला। और मुझे ख़ास तौर पे याद है जब करुणानिधि प्रतिभा देवी सिंह पाटिल पर जिस समय यूपीए नाम नहीं तय कर पा रही थी कि वो राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार होंगी, तो करुणानिधि वहाँ से आए और उसके बाद तमिलनाडु भवन में वो थे और वहीं पे अंत में नाम फाइनल हुआ। तो उसी समय हम लोगों ने करुणानिधि से पूछा था, तो उन्होंने बोला था कि देखो तमिलनाडु को केंद्र की राजनीति में हमेशा रहना है, चाहे जिस भी तरीके से रहे हमेशा रहना है, और सरकार चाहे किसी भी बने तमिलनाडु को उस सरकार में होना है। तो उसके आधार पर मैं कहता हूं कि आज पिछले चुनाव में अगर डीएमके को नंबर मिलता तो शायद इस एनडीए सरकार में भी डीएमके के लोग मंत्री होते। तो यह थी करुणानिधि की व्यवहारिक सोच। सवाल इस बात का नहीं था कि वे केंद्र की राजनीति में या केंद्र सरकार में अपने प्रतिनिधि क्यों भेजते थे। उनका एक मकसद था कि तमिलनाडु को केंद्र सरकार में प्रतिनिधित्व होना चाहिए किसी भी तरीके से, और वह तरीका यही था कि डीएमके पार्टी हो। तो डीएमके पार्टी हमेशा, आप वीपी सिंह के समय से ही देखिए, उसके पहले भी कांग्रेस के साथ जब उन्होंने लड़ाई की, इमरजेंसी का विरोध किया, उसके बाद फिर कांग्रेस के साथ समर्थन हुआ, फिर वीपी सिंह के साथ वो जुड़े, वीपी सिंह के बाद फिर यूपीए में भी शामिल हुए, फिर उसके पहले एनडीए में भी शामिल हुए। तो यह जो करुणानिधि का यह जो फ्लेक्सिबिलिटी थी करुणानिधि की राजनीति में, कई बार हमें भी संदेह होता था रिपोर्टर होने के नाते कि ये क्या राजनीति है, लेकिन वो बार बार इसी बात को परिभाषित करते थे कि तमिलनाडु हमारी राजनीति के केंद्र में है और तमिलनाडु का आदमी जरूर होना चाहिए केंद्र सरकार में, और इसी को वो केंद्र में रख के अपनी राजनीति चलाते थे। और जहाँ तक आपने एलटीटी की बात कही या श्रीलंका की बात कही, मुझे भी वहाँ जाकर करुणानिधि के लोगों से बात करने का मौका मिला। वे आज भी इसी बात को मानते हैं कि श्रीलंका में जो श्रीलंकाई रिफ्यूजी हैं जो भारत में आए हैं, उनको तब तक वहाँ नहीं जाने दिया जाना चाहिए जब तक वहाँ सुरक्षित माहौल नहीं हो। और करुणानिधि इस बात को लेकर काफ़ी संजीदा होते थे। मुझे वहाँ जाने का मौका मिला, वहाँ के शरणार्थी शिविरों में, और फिर श्रीलंका में भी जाने का मौका मिला, जाफना में। और जब देखा कि प्रयास काफ़ी हो रहे हैं, तब उन्होंने एक तरीके से केंद्र सरकार को बोला कि ठीक है, धीरे धीरे करके अगर लोग जाना चाहते हैं तो आप जाइए, लेकिन ज़रूर इस बात पर नज़र रखिए कि वहाँ उनके साथ कोई अन्याय नहीं हो। तो करुणानिधि दोनों फ्रंट पे, या तो वो सेंटर की राजनीति में जब भी कोई कोलिशन बनता था तो करुणानिधि के बिना कोई कोलिशन की बात नहीं सोच सकता था, क्योंकि दक्षिण की राजनीति में करुणानिधि कहें कि सबसे बड़े ध्रुव थे, जो न सिर्फ अपनी पार्टी बल्कि पूरे द्रविड़, जो आप बताते हैं कर्नाटक की राजनीति, केरल की राजनीति, तमिलनाडु की राजनीति, दक्षिण की पूरी राजनीति है, और उसकी आंच यहाँ तक महाराष्ट्र तक भी आती थी। तो इस पूरे राजनीति की धुरी वो बनते थे। और यहाँ लेफ्ट के साथ जो उनका एक दोस्ताना व्यवहार होता था, लेफ्ट हमेशा तीसरा मोर्चा की राजनीति में लेफ्ट की काफ़ी बड़ी भूमिका होती थी, भले भी नंबर कम हो, तो उसके साथ जो दोस्ताना व्यवहार होता था, उसके चलते उनकी जो पूरी समाजवादियों के साथ भी एकजुटता बनती थी, वो बड़ी देखने लायक होती थी। और जब अटल बिहारी वाजपेयी के साथ उनका हुआ तो उस समय भी वो बहुत ही उस अंदाज में कहते थे कि हमें केंद्र की राजनीति में रहना है, शर्त यही है कि हमें तमिलनाडु को महत्वपूर्ण स्थान दिलाना है। और यह एक नेशनल इंटीग्रेशन के लिहाज से भी काफ़ी बड़ा, एक बहुत बड़ा कदम होता था कविंद्र, क्योंकि जब आप जाएंगे तमिलनाडु में तो आप महसूस करेंगे कि कितना फ़र्क होता है पूरे, अगर उत्तर भारत की राजनीति, उत्तर भारत, उनके पुत्र स्टालिन और बाकी परिवार के सभी सदस्यों को हमारी संवेदना है। और जिस तरीके से गणपति जो अखिलेश ने कहा धुरी के तौर पर, और मैं फिर लौटना चाहूँगा कि तमिलनाडु का स्टेक
सेंटर की राजनीति में बहुत रहा है। सत्ता किसी के हाथ में रही हो सेंटर की, लेकिन तमिलनाडु में जाकर उन्हें मनाने और एक तरीके से उनका समर्थन हासिल करने की जरूरत रही है। अब जयललिता के बाद करुणानिधि भी नहीं है। उन दोनों के जाने के बाद तमिलनाडु का क्या वो धमक, क्या वो राजनीतिक पकड़, या मैं कहूं अकड़ भी, वो कायम होगी या कमजोर हो गई? करुणानिधि का एक छोटा सा और खासियत बताना चाहता हूँ। बहुत सारे नेता हैं कि जो चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं और उसके बाद जो है यहाँ पार्लियामेंट में आ जाते हैं, लोकसभा या राज्यसभा में। करुणानिधि अगर चाहते थे तो हर बार आ सकते थे, लेकिन एक बार भी वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनी नहीं। वहाँ स्थिति जितने भी खराब हो, अपोजिशन हो, स्ट्रेंथ हो, नहीं हो, वहीं बैठ के वहीं लड़ते थे। वो जिन को चाहते थे उनको यहाँ भेजते थे, एमपी बनाते थे। मुरसिल मारन उनका नेफ्यू था, उनको एमपी बनाया, मिनिस्टर बनाया। उनका बेटे दयानिधि मारन, उनको भी एमपी बनाया, मिनिस्टर बनाया। लेकिन वो कभी भी ऐसा वहाँ पे अनकंफर्टेबल फील नहीं करते थे वहाँ की, जो यहाँ दिल्ली में आके बैठ गए, यहाँ राजनीति के सभी सदस्यों को हमारी संवेदना है। जी गणपति, वहीं से वो कंट्रोल करते थे, वो उनका खासियत था। और सेंट्रल गवर्नमेंट में उनका यहाँ पे ऐसा अभी आज तक इम्प्रेशन है कि करुणानिधि इज़ अ वेरी रिलायबल अलाई। डीएमके हो, कांग्रेस हो, सोचते हैं कि ये साथ रहेगा तो हमारा साथ रहेगा, छोड़ के नहीं जाएगा। लेकिन ये करुणानिधि जी कंटिन्यूस 16 साल सेंट्रल गवर्नमेंट में अलायंस पार्टनर थे, पहले बीजेपी के साथ भी, फिर कांग्रेस के साथ भी। तो ये दोनों पार्टी के साथ बार बार इन्होंने अलायंस किया। फिर भी लोगों का इंप्रेशन है कि करुणानिधि इज़ अ रिलायबल लीडर, ये कुछ कहेंगे तो वो करके दिखाएंगे, हमारा साथ रहेंगे। तो ये सब इम्प्रेशन के कारण जो है उनका असर ना वहाँ तमिलनाडु में, यहाँ दिल्ली में भी पड़ा। वो और चाहते भी थे। और ऐसा कुछ नहीं है कि तमिलनाडु बहुत बड़ा स्टेट है और वहाँ से जो है वो 80-90 एमपीज चुन के आ रहे हैं, यहाँ नहीं है। अभी भी ओनली 39 सीट्स आर देयर। पर उतने के अंदर जो है वो जैसा अलायंस, लोगों के साथ बातचीत करना, मैनिपुलेशन करना और अपना नेगोशिएशन करना, तो ये सब करुणानिधि का एक पॉलिटिकल कला है। तो उसी को कायम रखते हुए वो सेंटर में भी अपना इन्फ्लुएंस रखते थे। ओके, हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले एक नज़र करुणानिधि के सिनेमा से और राजनीति तक के पूरे सफर पर। तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री और द्रविड़ा मुनेत्रा कज़गम यानी डीएमके नेता एम करुणानिधि ने देश की राजनीति में एक अलग पहचान बनाई। एम करुणानिधि यानी कि मुत्तुवेल करुणानिधि का जन्म 3 जून 1924 को तमिलनाडु के तिरुकुवलाई में हुआ था। महज 14 साल की उम्र में हिंदी हटाओ आंदोलन से उन्होंने राजनीति में कदम रखा। हिंदी विरोध के प्रदर्शनों से करुणानिधि ने तमिल राजनीति में मजबूत पकड़ बनाई। उन्होंने तमिल भाषा को हथियार बनाया और तमिल में नाटक और स्क्रिप्ट लेखन किए। समाज सुधार उनके लेखन में होता था, जो उनकी फिल्मों में भी नजर आता था। उनकी फिल्मों और नाटकों की लोकप्रियता बढ़ी तो सिने प्रेमियों ने उन्हें दिल में जगह दी और मतदाताओं ने सत्ता की कुर्सी पर बैठाया। करुणानिधि ने द्रविड़ आंदोलन के जरिए राजनीति की सीढ़ियां चढ़ना शुरू की। उनके सामाजिक सरोकारों ने उन्हें जन जन का नेता बना दिया। करुणानिधि 1957 में पहली बार तमिलनाडु विधानसभा के लिए तिरुचिरापल्ली जिले के कुलिथालाई विधानसभा से चुने गए। 1961 में डीएमके के कोषाध्यक्ष बनाए गए। 1962 में विधानसभा में विपक्ष के उपनेता बन गए। 1967 में डीएमके सत्ता में आई तो उन्हें सार्वजनिक कार्य मंत्री बनाया गया। 1969 में अन्नादुराई का निधन होने पर करुणानिधि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने और डीएमके की कमान संभाली। वो 13 बार तमिलनाडु विधानसभा के लिए चुने गए और 1969, 1971, 1989, 1996 और 2006 में 5 बार मुख्यमंत्री बने। एम करुणानिधि राजनीतिज्ञ, फिल्म पटकथा लेखक, पत्रकार के साथ साथ तमिल साहित्यकार के रूप में भी जाने गए। यही वजह है कि भाषा पर महारत रखने वाले करुणानिधि को उनके प्रशंसक कलाइनार यानी कला का विद्वान कहते हैं। दक्षिण के इस सितारे की कमी हमेशा महसूस की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।
Well, if you're just tuning in, M Karunanidhi, of course, the chief of DMK, five-time former chief minister of Tamil Nadu, is no longer with us. He has passed away. The time of death was 6:10 p.m. earlier this evening. The government, of course, has declared 1 day's holiday and 7 days of mourning in Tamil Nadu due to the demise of M Karunanidhi. We are talking about the legacy, the life, and what he leaves behind, of course, here in our studio with Ganapati Subramaniam and Rajalakshmi of the Frontline with us in our studio. Rajalakshmi, is it safe to say that Karunanidhi, in fact, showed regional parties how to survive at the centre? Yes, clearly he did, and he did, perhaps in a sense, emphasize the importance, of regional parties also staking a claim to promoting the interests of the state in which they sort of represented, in fact vis-a-vis the centre, and also the importance of regional parties, in the sense of carving their own identity, and space, I think within the state, and plus and in fact vis-a-vis other states too, because in terms of the entire Kaveri dispute, how the whole Tamil identity and the interests of DMK, Tamil Nadu, and that of Tamilians somehow coalesced, as if into one, and it was such that no other political party, for instance the AIDMK, could also sort of opt out of that framework. They had to, I think, willy-nilly speak about the interests of Tamil Nadu, of the Tamil people, and there was a kind of identity politics around the issue of sharing of waters, but as I said, how it sort of practically sort of turned out, because it became an emotive election issue every state assembly elections, as to how much the centre is going to do and how is the centre going to intervene, and in whose favour, vis-a-vis Karnataka and Tamil Nadu. So it was always a very effective tool to in fact mobilize people around such issues. Indeed, Ganapati, as far as I'm going to go back to a point that Ghulam Nabi Azad was making. He was talking about how he should be given his due role even after death. One of the wishes of Karunanidhi was that he should be laid to rest next to Annadurai, of course, at Marina Beach. Do you see that eventually happening? Do you believe that he should be given that space? Tamil Nadu government has already announced 7 days mourning and holiday tomorrow, etc. But whether he will be given place next to Annadurai is not very clear, because there have been several controversies. When Anna's memorial was made on the Marina Beach, it was the only one. And those days things were hassle-free. Whatever the government decided, it could do. But later on, we also have Jayalalitha's memorial there and MGR's memorial there. And recently there was a court litigation saying that no, we can't allow Marina Beach to be made into a place of memorials, with so many memorials occupying the seashore. So therefore, that case of course has been withdrawn today. Whether the government will go ahead and do that, because there are also coastal area regulations which are in place now, which were not in place those days. So because of these many factors, government has to decide the legal aspect and also the environment aspect, and then give him a place. But I am sure being five-time chief minister of the state and such a tall political leader, the state government will give him a pride of place. Whether that's going to happen at Marina or whether it's going to happen at Gindi, like Rajaji Memorial, etc., is to be seen. Yeah, taking the discussion forward now, looking at Tamil Nadu as a whole, would you say that Tamil Nadu politics is at a crossroads today? Of course, the big question is what next? Because Dravidianism, the pace set by the movement, and DMK and ADMK capitalizing on it is all one story. But now things have changed so much from 1957-67 to today. We are in 2018. Anti-Hindi movement or etc. is not going to get the same response as it used to get earlier.
we see that many DMK and ADMK leaders visit temples. ADMK leaders, even you can see them having vibhuti and kungumam on their forehead and going to temples and doing pujas, etc. in public. It was not thinkable at one point in time. Similarly, many DMK leaders, even Stalin also visited some temples, whether they may not have done pujas or whatever, vrat or whatever, but that thing has changed. Don't go near a temple, be anti-Hindu, anti-temple. Those things are not there now. Things are changing quite a lot. Therefore, we see that Rajinikanth is saying he is going to start spiritual politics. Yeah. So, from those days of atheism to spiritual politics now, it's a totally different situation. Yes. Absolutely. Yes. And Kamal Hassan is going to probably fight on anti-corruption plan. So, the situation has changed. That is why new types of politics and new types of leaders are emerging who will be able to attract the masses, control the masses, ADMK, whether the ruling dispensation or whether it is TTV Dinakaran which is going to prove the mettle in the elections whenever they are held. All that is going to decide. Since we are at this juncture, Rajalakshmi, I'd like to ask you, does it now leave the doors open for the national parties to re-enter Tamil Nadu? I do not think it's going to be all that easy. As I said, that there has been, a natural suspicion of, parties, other than, the Dravidian parties in the state, and there has been a lot of justified speculation on even the entry, of Rajinikanth, whether he'll be able to fulfill the vacuum, in fact, fill the vacuum, okay, which has been left, or for that matter, is there any vacuum at all? Is there a vacuum in Tamil Nadu state politics today that needs to be filled in, and if these two people are sort of capable of filling it too, because first you have to have an organization, you have to have a certain amount of mass support, and and that mass support, it doesn't come just in a day. There has to be, of course, corruption charges have been against both the parties, DMK and AIDMK, but yet we did not see the emergence of any other third party entering the scene, either the BJP or the Congress, isn't it? So, sure. So as far as the people of Tamil Nadu are concerned, I think the electorate support as well as is quite, equally, divided between these two parties, without really so much of a scope for any other third front. अखिलेश जी, जो बात राजलक्ष्मी कह रही हैं और बहुत अहम है कि जिस तरीके की राजनीति होती रही है, चाहे वो करुणानिधि साहब ने की हुई या फिर जयललिता ने, और उन जिन तबकों को लेकर आवाज बुलंद की, स्कीम्स चलाई गई या रिजर्वेशन की बात कही गई, अब जो भविष्य की राजनीति दिख रही है और जो सामने इस वक्त चेहरे हैं, क्या वो उसी मैं कहूं कि लाइन के लोग हैं जो उसको आगे ले जाने की कोशिश करेंगे, या उससे अलग कहीं कुछ नए मुद्दे, कुछ नए रास्तों के जरिए राजनीति तमिलनाडु की आगे बढ़ सकती है? हाँ, देखिए कविंद्र, जो आपने सही पकड़ा कि जो द्रविड़ मूवमेंट था, द्रविड़ मूवमेंट का मतलब सिर्फ यह नहीं था कि केवल एंटी हिंदी, बल्कि एक कास्ट के अंदर सोशल जस्टिस का भी मामला था। और जो हम देखते हैं हिंदी इलाके में सामाजिक न्याय का आंदोलन, तो उस आंदोलन पहले ही सेटल हो चुका था तमिलनाडु जैसे स्टेट में, वेस्ट बंगाल में पहले ही सेटल हो चुका था। तो आज जो वह अगर आप देखना चाहेंगे कि बिल्कुल उसी तरीके से द्रविड़ आंदोलन होगा, तो अब वह संभव नहीं है। अब तमिलनाडु की राजनीति के सामने कई अहम सवाल हैं, और वो अहम सवाल है जो मॉडर्निटी का सवाल है, तमिलनाडु को किस तरह से देश की मुख्य धारा में बनाए रखना है, और जो इंटरनल उसकी चर्निंग हुई है, जो इंटरनल चर्निंग खास तौर पे शेड्यूल्ड कास्ट के मामले में अभी भी जो काम करना है, वह काम करना है। तो जो खास तौर पे जब करुणानिधि जिस धारा को रिप्रेजेंट करते थे, उसको आप समझ सकते हैं कि यहाँ की ओबीसी धारा को जो रिप्रेजेंट करने वाले नेता थे, उनके समकक्ष माना जाता था। तो एक तरह से कर सकते हैं कि सबसे निचले वाले समाज की धारा को अब लेकर शायद अगली पीढ़ी के नेताओं को चलना पड़ेगा, और वह पुराना केवल हिंदी विरोधी या जो एंटी ब्राह्मणिज्म, क्योंकि अब ब्राह्मणिज्म और पिछड़ी जातियों के बीच की जो लड़ाई थी तमिलनाडु में काफ़ी पहले सेटल हो चुकी है। अब उसमें कुछ बहुत बचा नहीं है, जैसे तरह बिहार यूपी में कुछ नहीं बचा है ज़्यादा कुछ करने को। रिजर्वेशन का मामला भी सेटल हो चुका है। तो अब आगे आने वाले, जैसा कि मैं देखता हूं कि जिस तरीके से M K स्टालिन
तमिलनाडु के पूरे अस्मिता के बारे में बात करते हैं, तमिलनाडु को सेंटर के पूरे स्रोतों में शेयर की बात करते हैं, उस तरह की बात होगी, फेडरलिज्म की बात होगी। लेकिन जो पुराना जो तरीका था द्रविड़ आंदोलन का, मुझे नहीं लगता कि वह आंदोलन, क्योंकि द्रविड़ आंदोलन की एक पृष्ठभूमि थी, वो जो पृष्ठभूमि में करुणानिधि डेवलप किए थे, पेरियार, उसके अलावा अन्नादुरई और यहाँ तक कि एमजी रामचंद्रन ने भी उस धारा को रिप्रेजेंट किया। उसके बाद जयललिता के आते आते आप पूरी तरह गरीब को सुविधाएं देने में बदल गई, और उसके अलावा कई तरह के ऐसे प्रयोग हुए जयललिता के नेतृत्व में भी कि जिस प्रयोगों के खिलाफ करुणानिधि को जाना पड़ा, खास करके शराब के मामले में। जिस तरीके से जयललिता ने पूरे समाज में हर नुक्कड़ पे शराब की दुकानें खोली थी, उसके विरोध में करुणानिधि को जाना पड़ा। तो ये सारे मामले हैं, ये सारे मामले नए तरीके से किस तरीके से शेप लेंगे, और तमिलनाडु की राजनीति में एक खास जो होता है वह राजनीति में होती है कि सेंटर के मामले में सेंटर से शेयर लेने का बात होता है। तो मुझे लगता है कि यह अहम बना रहेगा, और स्टालिन एक नए नेता के रूप में उभर रहे हैं, जो मुझे लगता है कि करुणानिधि की विरासत को संभालने में, मैंने देखा है करुणानिधि के पार्टी डीएमके की पार्टी के दफ्तर पे अब अगर जाएंगे तो आपको लगेगा कि एक मास लीडर का, एक मास पार्टी का दफ्तर है। और मुझे लगता है कि करुणानिधि ने जो विरासत दी थी कि एक मीडिया भी खोलेंगे, और उसके बाद एक आम लोगों के लिए दफ्तर का दरवाज़ा और नेताओं के दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे। कई प्रवक्ता होंगे जो बार बार आपके मीडिया को बयान लेने अगर जाना है तो आपको प्रवक्ताओं की फौज मिल जाएगी, जो प्रवक्ता आपसे बात करेंगे, नेता बयान देंगे। और ऐसा नहीं कि हर बात के लिए उन्हें करुणानिधि से या स्टालिन से पूछना है। जो संस्कृति करुणानिधि ने स्थापित की थी, अपने नेताओं को भी एक थोड़ी सी ऑटोनॉमी, बोलने की आज़ादी देने की, मुझे लगता है कि वह आज़ादी स्टालिन भी दे रहे हैं। और उस दिशा में डीएमके की राजनीति में अभी लगता है कि करुणानिधि ने जो विरासत सौंपी है वो विरासत आगे बढ़ेगी इस रूप में, खुली राजनीति के रूप में। और क्या ये माना जाए अखिलेश की जिस तरीके से तमिलनाडु के अंदर और 60 के दशक के बाद जो केंद्रीय या मैं कहूँ कि राष्ट्रीय पार्टियां थीं, उनके लिए जगह करीब करीब ख़त्म हो गई, या फिर नंबर 2 या 3 की ही पोजीशन से संतोष करना पड़ा उन्हें, यानी कि पीछे खड़ा होना पड़ा क्षेत्रीय क्षेत्रफलों के पीछे। और केंद्र की राजनीति में भी उनका योगदान, यानी कि तमिलनाडु की पार्टियों का योगदान अहम रहा है। अब स्थिति उलट होने जा रही है, या फिर कोई ऐसा आपको लगता है कि वहां पर करिश्माई नेता, इस तरीके की जो आंदोलन हुए हैं, आगे अभी वो भविष्य तमिलनाडु का वही रहने वाला है? देखिए कविंद्र, ये बहुत ही रोचक सवाल है, और इस सवाल का जवाब मैं ऐसे देना चाहूँगा कि करुणानिधि और जयललिता दोनों ने एक शून्य दिया है पूरे, न सिर्फ तमिलनाडु की राजनीति में बल्कि केंद्र की राजनीति में भी। जयललिता भी कभी कभी शून्य भरा करती थी। तो केंद्र की राजनीति का किस तरीके से कनेक्ट होता था तमिलनाडु से, वह शून्य जरूर उत्पन्न हुआ है। लेकिन जिस तरह से होता है कि राजनीति में कभी शून्य होता नहीं है, कोई ना कोई अपना स्थान आकर ले लेता है। तो तमिलनाडु की जो पूरी भावना है, तमिलनाडु में एक जो क्षेत्र की अस्मिता बचाने की भावना है, मैं उसे क्षेत्रवाद नहीं कहूँगा, उस क्षेत्र की अपनी एक अस्मिता है, एक संस्कृति है, एक भाषा है, और उसके अलावा उस क्षेत्र ने मॉडर्निटी भी स्थापित की है। चेन्नई आप देखिएगा, चेन्नई एक तरीके से आधुनिक विकास का बहुत बड़ा केंद्र के रूप में उभरा है। और आज भी चेन्नई लगातार, तमिलनाडु में कई अच्छे बड़े बड़े अस्पताल खुले हैं, और उन अस्पतालों का कोई आपको सानी नहीं मिलेगा देश के किसी अन्य जगहों में। तो तमिलनाडु सिर्फ इस तरह से नहीं है कि द्रविड़ आंदोलन के लिए, बल्कि तमिलनाडु में आधुनिक जो विज्ञान और तकनीक के जो केंद्र है उस रूप में भी तमिलनाडु विकसित किया। तो वह जो मिली है थाती तमिलनाडु की जनता को, मुझे लगता है कि अभी केंद्र की किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए बहुत ही आसान नहीं होगा। और पिछले चुनाव के समय में देख रहा था कि कुछ राजनीतिक पार्टियों ने एंटी द्रविड़ के रूप में भी अपने को प्रोजेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें ज़्यादा सफलता नहीं हासिल हुई, क्योंकि जिस भावना पे, जिस आधार पे और जिस राजनीतिक बुनियाद पे तमिलनाडु ने अपने आप को रीअसर्ट किया है पूरे केंद्र की राजनीति में, और वह रीअसर्शन आपको कई बार संसद में भी मिलेगा जब भाषा के सवाल खड़े होते हैं और वे कहीं से अपने आप को कमतर नहीं महसूस करते। तो वह जो तमिलनाडु की राजनीति की थाती है, वह राजनीति की थाती अभी बनी रहेगी। लक्ष्मी, एक और सवाल जो खड़ा होता है कि जिस तरीके की आंदोलन और उसके बाद जो लीडर थे वो उस जमीन से निकले जिन्होंने खुद महसूस किया उस दर्द को, और उसके बाद उसको खत्म करने या उस समाज या उस बड़े वर्ग के लिए उन्होंने नीतियों को बनाया, उन्हें लागू किया, चाहे वो सोशल सेक्टर्स की स्कीम हो जिन्हें बाकी राज्यों में, सेंटर में कई बार फ्रिस्बीज का नाम दिया गया, या फिर रिजर्वेशन का वो हाई
स्टैंडर्ड हो, जिसको लेकर कोर्ट तक गए लोग, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने उसको जारी रखने की मादा दिखाया। ये मादा क्या वहां की राजनीति का अब एक अनिवार्य, एक मैं कहूं कि कंपल्सरी इंस्ट्रूमेंट है, या फिर यहां पर भी कहीं भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लगता है? जी देखिए, एक तो होता है कि एक जेन्युइन तौर पर मतलब गरीब तबके के लिए संवेदनशील होना और संवेदना होना उनके लिए, और उस हिसाब से आप उनके लिए नीतियाँ भी बनाते हैं। तो वो एक ट्रेडिशन रहा द्रविडियन मूवमेंट का। अब क्योंकि उसकी जो पृष्ठभूमि थी वो थोड़ी रेडिकल थी, जैसे एक हिसाब से देखा जाए तो सामाजिक सुधार, हाँ, सामाजिक बदलाव और समाज में जो जाति प्रथा को लेकर जो कुरीतियाँ थी उनके खिलाफ ये पूरा जो मूवमेंट चला है ना। और तो उसके साथ साथ इकोनॉमिक आर्थिक नीतियाँ भी, उसमें भी बदलाव आता गया। तो मेरे हिसाब से तमिलनाडु में भी कुछ हद तक तो लैंड रिफॉर्म और लैंड सीलिंग एक्ट का इम्प्लीमेंटेशन तो हुआ है, ऐसी बात नहीं है। तो आज के दौर में वो अगर सिर्फ एक जो है लेगेसी के ही दौर में अगर कंटिन्यू करना है, हाँ, तो वो एक अच्छी बात है, एक अच्छी बात है, क्योंकि जो गरीबी अभी भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है सभी राज्यों में, और पर अलग अलग जो है लेवल पर है। और इसीलिए जो है सस्ते अनाज का जो प्रोविज़न है वहाँ पे ऐसा है कि सबको मिलता है, मतलब 3 रुपया किलो हो चावल या उससे भी कम शायद, सब जगह मतलब ये सबको मिलता है। तो अगर अगर आप उसको अगर आप चाहें आप ले, जैसे हम और आप जैसे लोगों को भी वो सुविधा जो है प्राप्त है। तो एक हिसाब से वो एक कंपल्शन भी है कि उसको कंटिन्यू भी करना है, क्योंकि आर्थिक तौर पर तो बहुत मार पड़ी है। मतलब किसानी भी तमिलनाडु में एक बहुत भारी संकट से गुजर रहा है। तमिलनाडु में भी सुसाइड्स हुए हैं, फार्मर सुसाइड्स हुए हैं। तमिलनाडु के किसान बहुत दिन तक यहाँ जंतर मंतर पर प्रदर्शन जो है करते रहे। और लेकिन सवाल ये कि गणपति, जिस तरीके के अब जो नए चेहरे हम देख रहे हैं, इन 2 बड़े चेहरों के जाने के बाद, क्या वो चेहरे इस दर्द को समझते हुए इस तरह की स्कीम के साथ आगे बढ़ने की राजनीति को आगे बढ़ाएंगे, या फिर कहीं जो चेहरे अब आने वाले हैं जिन पर वहाँ की जनता विकल्प के तौर पर जो सामने है, वो इससे अलग दूसरी तरह की राजनीति के सहारे आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे? नहीं, एक तो लोग ये भी मानेंगे कि आप एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन करो। आज का ज़माने में एम्प्लॉयमेंट कहाँ है? आप मतलब गरीब है, ठीक है, उनको आप अनाज दे रहे हैं, ठीक है, वो, लेकिन वो गरीबी से उठ के बाहर तो आए। उसके लिए तो एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट, ये दोनों बहुत ज़रूरी है। एम्प्लॉयमेंट चाहिए तो आपको इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बिजनेस डेवलपमेंट चाहिए। तो ये करने के लिए करप्शन को काटना पड़ेगा। करप्शन नहीं होगा तभी डेवलपमेंट होगा, लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगा। जैसे आईटी इंडस्ट्री है, आईटी इंडस्ट्री की वजह से लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला तो अच्छे एम्प्लॉयमेंट मिला। जैसे कि अगर कोई किसी को गवर्नमेंट जॉब और आईटी बोले तो आईटी में चला जाता था, वो ज़माना था। तो पूरा तमिलनाडु, कर्नाटका और आंध्रा, कई जगह में, बेंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई, तो इन जगह में एस्पिरेशन का, लोगों का एस्पिरेशन देखते हुए ये आईटी इंडस्ट्री वाज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर देम, कि उसकी वजह से कई लोग जो है अपना मिडिल क्लास से दे वर एबल टू मीट देयर नीड्स। अगर किसी को कार खरीदना है, एक मिडिल क्लास लाइफ लेना है, कोई फ्लैट खरीदना है, वो सब हो पाया। पहले तो नहीं हो पाया, वो सब सरकारी नौकरी से तो नहीं हो पाया। तो इस तरह का जो है लोगों का एस्पिरेशन जो चेंज होता है, उसके हिसाब से इनको चलना पड़ेगा। अगर रजनीकांत आते हैं या करुणानिधि आते हैं, खाली स्पिरिचुअलिज्म से या एंटी करप्शन से नहीं चलेगा, डेवलपमेंट लाना पड़ेगा। और तमिलनाडु में ये तो कहीं जी हम लोग कई बार पहले भी बात कर चुके हैं, किसानों के लिए बहुत बड़ा मुसीबत है कि पानी नहीं है। तो पानी नहीं है तो वो कैसे खेती करेगा? अगर उसको आपने सब्सिडाइज्ड फर्टिलाइजर दे देंगे, सब्सिडाइज्ड बिजली दे देंगे, पानी कहाँ से आएगा? बेसिक इश्यूज पे आप कह रहे हैं तो वो राजनीति करनी पड़ेगी, वो करना पड़ेगा। और क्लाइमेट चेंज की वजह से कोस्टल एरिया है तमिलनाडु, तो वो ज़्यादा बाकी जगह से ज़्यादा प्रभावित है। तो और आगे जाके और भी मुसीबतें आना है, वो सब चैलेंजेस नए नए आएंगे और उसके हिसाब से इनको सोच के चलना पड़ेगा, नहीं तो पब्लिक किसी को भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। चलिए इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे और कुछ और पहलू तमिलनाडु के राजनीति के, करुणानिधि के राजनीतिक सफर और बड़े पड़ाव पर चर्चा जारी रहेगी। छोटे से ब्रेक के उस पार।